Hello student, myself Hirani sir and I will taking your computer subject. So start first chapter, Introduction to Multimedia. The first question in our mind, what is multimedia? Communication is an integral part of our life. मतलब कम्युनिकेशन हमारी लाइफ का अहम हिस्सा है. We use various means of communication like radio, newspaper, television, theater, movie, internet and others. मतलब कि हम कम्युनिकेशन के लिए इन सारे ज़रियों का इस्तेमाल करते हैं. रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, थिएटर, मूवी, इंटरनेट, एजुकेशन के अंदर अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो ये सारे मल्टीमीडिया के थ्रू हो सकता है. All this medium help us gain knowledge or educate us. A single medium of information is just not enough to convey meaningful message to variety of audience. For example, while talking on telephone to a friend, we can hear his video but cannot see his facial expression. मतलब कि हम अगर फ़ोन पे बात करते हैं अपने फ्रेंड से तो वो हमारी आवाज़ तो सुन सकते हैं लेकिन हमारे चेहरे के जो हाव भाव है, जो एक्सप्रेशन है, वो नहीं देख पाते. मतलब कि कम्युनिकेशन में एक ही एलिमेंट का यूज़ किया है, वो है वॉइस. तो इतना मतलब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा. When you write letter to a friend describing him about your trip to Kashmir, तो ये बता रहे हैं कि अगर आप अपने फ्रेंड को अपने समर वेकेशन में कश्मीर की टूर पर आप गए हैं और उसके बारे में अपने फ्रेंड को आप बता रहे हैं लेटर लिखते हुए कि भाई मैं तो वेकेशन ऐसे एंजॉय किया, ये किया, वो किया, यहाँ पे घूमने गए थे, मैंने ये देखा. तो ये सारी चीज़ें आप लेटर में लिख के बताओगे तो ये कम्युनिकेशन इतना इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपके लेटर पढ़ने के बाद या तो लेटर पढ़ते वक्त वो सिर्फ आपके वर्ड को समझ सकता है. आपने जो एंजॉय किया है वो इतना इफ़ेक्टिवली तो वो नहीं समझेगा. तो उससे बेटर है कि अगर आप उनके बदले में लेटर के साथ थोड़े बहुत फ़ोटो कॉपी भेजेंगे तो वो ज़्यादा उसको समझ पाएगा. या फिर उसको वीडियो शूटिंग करके आप भेजोगे तो उससे भी बेटर उसको आप समझा पाएंगे कि आपने क्या एंजॉय किया और आपके फ्रेंड ने क्या मिस किया. आप शायद समझ गए हैं. You cannot hear the voice of the person. If you send him a picture along with the letter, he can imagine the fun you had during your trip. However, if you send a video clip, he could visualize more about the fun you had. As you can see, the more medium of information you use, the impact of the communication increases. Multimedia is all about adding various effects to make communication effective. In this chapter, we will learn about multimedia, basic element of multimedia and application of multimedia. मतलब कि इस चैप्टर के अंदर हम मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे. टोटल 5 एलिमेंट है मल्टीमीडिया के, तो वन बाय वन हम उसको सीखेंगे. ना व्हाट इज़ मल्टीमीडिया? तो पहले हम मल्टीमीडिया टर्म को ही समझ लेते हैं. द टर्म मल्टीमीडिया हैज़ बीन कॉइन्ड फ्रॉम 2 terms, multiple and second is media.
Multiple means more than one. Hence, hence multimedia means uses of multiple media to communicate. In other words, multimedia is a combination of different media elements like text, audio, graphics, video, and animation. The combination of all the media element makes the communication more structured and understandable to the user. Multimedia is nowadays used in every field like education, theatre, advertising, fashion, gaming, to name a few. Figure 1.1 shows different component of multimedia. In this figure, first element is text, second one is audio, next graphics, animation and video. These all elements is multimedia. It means these all are multimedia elements. Computer play a vital role in the development of this media element. A computer capable of handling text, graphics, audio, video and animation is sometimes called multimedia computer. Figure 1.2 shows use of the various element of multimedia. You can see the picture Somnath temple. You can see the figure here. Measure two elements of multimedia, one is text and second one is image or graphics. In figure right hand side, one paragraph over here. The paragraph shows about or tell about temples, and second element is temple of image. मतलब यहाँ पर दो एलिमेंट्स का यूज किया है, एक टेक्स्ट है और दूसरा है इमेज, जिसे हम पिक्चर कहते हैं या इमेज या तो फिर ग्राफिक्स आप बोल सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। आपने टीवी देखते वक्त नोट किया होगा कि मान लो आप अभी जी सिनेमा देख रहे हैं, तो राइट हैंड टॉप साइड कॉर्नर पर आपने मतलब टॉप कॉर्नर राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पर आपने देखा होगा जी सिनेमा का सिंबल आपको दिख रहा है। नीचे बॉटम साइड पर स्क्रॉलिंग में न्यूज़ आ रहा है, मेन स्क्रीन पर पिक्चर लगी है, मतलब पिक्चर चल रहा है। लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर नेक्स्ट मूवी कौन सी शुरू होने वाली है, ये पिक्चर खत्म होने के बाद कौन सी मूवी आने वाली है इस चैनल पर, वो दिखा रहे हैं। तो ये सारे मल्टीमीडिया का यूज किया है, तो वो चैनल देखने को आप ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि आपका जो करंट पिक्चर चल रहा है उसी स्क्रीन पर इसके नेक्स्ट कौन सी पिक्चर आने वाली है वो जानने के लिए आपको किसी दूसरे चैनल पे उसका शेड्यूल या और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी स्क्रीन पर आपको नेक्स्ट मूवी कौन सी है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो मतलब कि एक से ज़्यादा एलिमेंट का यूज़ करके आपको ये चैनल कम्युनिकेशन कर रहा है आपके साथ। तो ये एक से ज़्यादा एलिमेंट का यूज़ किस लिए, तो फोटो में यहाँ पे दिख रहा है आपको टेम्पल का पिक्चर है, साइड पे पैराग्राफ लिखा है, उसमें कुछ
थियरी लिखा है टेम्पल या ट्रैवलर्स के बारे में, तो यूज़र को ज़्यादा आसानी हो समझने में और वो अट्रैक्टिव हो, तो इस तरह से आप इस सारे एलिमेंट्स का यूज़ करके आपकी कम्युनिकेशन को ज़्यादा इफ़ेक्टिव आप बना सकते हो। तो उसके बाद वाला हम देखें, एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। We define multimedia as combination of various media elements like text, audio, graphics, video and animation. Let us now describe each element. तो सबसे पहला एलिमेंट है टेक्स्ट, तो उसको हम पहले देखेंगे। Including text in multimedia is the basic step toward development of multimedia presentation. Text is used to communicate information to the user. Proper use of text and word in the multimedia presentation will help to communicate the idea and message to the user. Text can be of any type, a word, a single line or a paragraph. The textual data for multimedia can be developed using any text editor. However, to give special effect, we need graphic software. We can even use word processing software like OpenOffice Writer or MS Word to create textual data. The text can have different type, size, color and style to suit the professional requirement of the multimedia software. Observe that the sample shown in figure 1.3 does not look the same. This is because they have different typeface, font and size. आप यहाँ पर फिगर 1.3 में देख सकते हैं गुजरात का स्पेलिंग 3 अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आपको। दिखने में सेम नहीं लगता है, स्पेलिंग सेम है, मतलब उनके अंदर जो इफेक्ट है, गुजरात का जो स्पेलिंग लिखा है उसके अंदर पहला थोड़ा नॉर्मल लिखा है, दूसरा थोड़ा डार्क लिखा है और शायद इटैलिक की इफेक्ट दी है, मतलब बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया है, तीनों में अलग अलग। तो ये क्या दिख रहा है आपको कि स्पेलिंग सेम है, मतलब उसको थोड़ा डेकोरेट किया हुआ आप देख सकते हैं। तो ये टाइपफेस, फॉन्ट और साइज अलग अलग इफेक्ट दिखाने का यहाँ पर कोशिश किया है। इस तरह से आप अपने, मान लो कि कोई पैराग्राफ लिखा है तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, या फिर उसे इटैलिक की इफेक्ट दे सकते हो, या फिर अंडरलाइन कर सकते हो। तो उस तरह से आप अपनी कम्युनिकेशन को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। A typeface is family of characters or letters which have similar look. For example, Times, Arial, Courier and others. Typeface have different style and size known as font. Style are italic, bold, underline and others. Size is the distance between the top of the letter to bottom point. It is expressed in points, for example 12 point, 20 point and so on. For example, if we have a font of Times New Roman 14 point, then Times New Roman is style and 14 is size. मतलब कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने देखा होगा और आप काम भी करते हैं तो आपको मालूम है कि हम फ़ॉन्ट की साइज़ या फ़ॉन्ट कौन सा सेट करते हैं। हेलवेटिका फ़ॉन्ट है, टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल ब्लैक है, तो ये सारे फ़ॉन्ट स्टाइल है। और जो 14, 12, 16, 18, 20, तो ये फ़ॉन्ट की साइज़ है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि फ़ॉन्ट की साइज़ का यूनिट कौन सा है, मतलब कि उसका जो
उसको क्या बोलते हैं कि हम उसको नापने का कोई एकम क्या है उसका, तो उसको हम पॉइंट में नापेंगे। मतलब कि 20 का फॉन्ट है तो 20 पॉइंट उसका एकम है, यूनिट, मेजरमेंट यूनिट है उसका पॉइंट। और हम बात करें, एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि आपने चौराहे पे कोई एडवर्टाइज का बोर्ड देखा होगा या होर्डिंग्स लगा होगा, तो उस होर्डिंग्स में आप मैक्सिमम ऐसे होर्डिंग्स पे आप दो एलिमेंट का यूज़ करके आपने एडवर्टाइजमेंट का बैनर बनाया होगा। तो उसमें एक होगा टेक्स्ट और दूसरा होगा इमेज, मतलब कि आपने कुछ लिखा होगा फ़ॉन्ट से, और दूसरा कोई आपकी प्रोडक्ट होगी तो उसका फ़ोटो होगा। जैसे मान लो कंप्यूटर का आपका बिजनेस है, तो आपने कंप्यूटर या लैपटॉप बेचने की आप दुकान चला रहे हो, तो उसकी आपने एक बैनर बनवा के चौराहे पे लगा दिया, तो लोग उसको देखेंगे। तो उसमें दो ही चीज़ दिखेगी आपको या हर किसी को, कि इसमें एक तो फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया है, मतलब कि आपने कुछ लिखा है कैरेक्टर से, और दूसरा है कोई आपने लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर के फ़ोटो रखे होंगे या कंप्यूटर स्पेयर पार्ट के फ़ोटो रखे होंगे, तो लोगों को ज़्यादा समझ में आए। उसी जगह पे वही ऐड आप अगर रेडियो पे या एफएम पे देते हो, तो एक तीसरा घटक, तीसरा एलिमेंट आएगा उसमें, जिसको हम बोलेंगे वॉइस, मतलब कि आवाज़, जो अभी आप हमारी सुन रहे हो। तो उसी तरह से आप एक से ज़्यादा एलिमेंट का यूज़ कर सकते हो ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो आपने न्यूज़पेपर में मान लो कि एडवर्टाइजमेंट दी है, तो शायद इतना इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता जितना आपने रेडियो पर दिया है, तो उससे न्यूज़पेपर से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। अब उससे भी अगर मान लो हमें और इफ़ेक्टिव अपनी एडवर्टाइजमेंट बनानी है, तो आप क्या करोगे कि भाई आप अपनी एडवर्टाइजमेंट टीवी पे दोगे। अब टीवी पे तो बहुत सारी चैनल आती है, तो आप ज़्यादा पब्लिक को इम्प्रेस करने के लिए कौन सा चैनल पसंद करोगे, वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूरदर्शन पे तो दोगे नहीं आप, क्यों नहीं दोगे? क्योंकि आप मानते हैं कि भाई दूरदर्शन तो आजकल लोग देखना शायद नहीं पसंद करते होंगे, तो आप ऐसी चैनल पसंद करोगे कि जिसमें ज़्यादातर यूज़र होंगे, मतलब कि वो चैनल सबसे ज़्यादा दिखने वाली होगी, उसी में आप एडवर्टाइजमेंट आप दोगे। तो ऐसा क्यों आपने सोचा कि भाई जो चैनल ज़्यादा दिख रही है उसी में आप एडवर्टाइजमेंट दोगे, तो कि आपका मार्केटिंग उतना ज़्यादा होगा, ज़्यादा यूज़र आपकी ऐड देखेंगे। तो उसका रीज़न क्या है, आपने वो चैनल क्यों पसंद किया? तो वही रीज़न आपको यहाँ पर सीखना है कि भाई ज़्यादा चैनल वो क्यों देख रहे हैं, दूरदर्शन क्यों कम लोग देख रहे हैं। तो उसका मेन रीज़न ये है कि उसकी क्लैरिटी, उसकी जो भी वॉइस क्लैरिटी है, या उसमें जो भी प्रोग्राम्स दिखाते हैं, वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का होगा। वो सारी चीज़ें ध्यान रखते होंगे कम्युनिकेशन में कि यूज़र को थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो। तो इस तरह से वो अपना चैनल की टीआरपी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपना जो भी कम्युनिकेशन मतलब प्रसारण है वो बेहतर बनाया है इन सारे एलिमेंट्स का यूज़ करके। तो लोग ज़्यादा उसको पसंद करेंगे, वो स्वाभाविक है। तो हम भी अपनी एडवर्टाइज को और अच्छा बनाने के लिए इन सारे एलिमेंट का यूज़ करके आप टीवी पे ऐड देते हो, तो टीवी पे जब ऐड देते हो तो उसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। हमने अभी फिगर में देखा कि भाई पहला वाला था टेक्स्ट, दूसरा था इमेज, तीसरा था वॉइस, फिर वीडियो, फिर एनिमेशन। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि 5 के 5 एलिमेंट, ये आप टीवी पे जो ऐड दोगे तो उसमें सब के सब आ जाएंगे। कैसे? मान लो कि आप वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आपका फ़ोटो आ गया, आपकी वॉइस आ गई,
और आपकी मतलब कि आपकी आवाज़, आपका चेहरा, कुछ बोलते हो और कुछ लिखा है, या फिर वो आप एडिटिंग करके साइड में थोड़ा बहुत लिखा हुआ, या प्रोडक्ट का नाम या बोतल पे कुछ लिखा होगा, तो ये सारे घटक एक साथ, मतलब सारे एलिमेंट का एक साथ यूज़ करके आप अपनी एडवर्टाइजमेंट को बेहतर बना सकते हैं। तो इस चैप्टर में फ्रेंड्स हमें यही सीखना है, और हमें कम्युनिकेशन को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ये सारे एलिमेंट्स का यूज़ करके हम थोड़ा बहुत इसमें प्रैक्टिकल, वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम काम करना चाहते हैं घर पे, तो आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और यही आपका इसमें होमवर्क रहेगा कि गुजरात टूरिज़्म के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे, और उसका स्लाइड शो करके आप अपने टूरिस्ट को गुजरात टूरिज़्म के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।